قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا کے بارے میں بائبل کیا بتاتی ہے۔ بہت سی باتیں ہم پچھلے ایپیسوڈز میں ہم سیکھ کر، ایک نقطہ آخری جو ہم نے پچھلے جمعے سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، He is the consuming fire، بدی کو ختم کر دیتا ہے، شریروں کی راہ نابود کر دیتا ہے، گندگی اور ناراستی کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ اس کا جلال، اس کا نور، اس کی ہیبت ایسی ہے، تسلونیکیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس کی آمد کی تجلی سے دشمن نیست ہو جائے گا۔ وہ جب آئے گا تو اس کے آنے سے جو روشنی پیدا ہوگی، اس کی آمد کی تجلی سے، اس کی لائٹ سے دشمن ختم ہو جائے گا۔ ایسی آگ ہے ہمارا خدا جو دشمنوں کو کھا جاتی، انہیں بھسم کر دیتی ہے۔ اس سے آگے آج ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا ہی زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے جاننا، خالق صرف خدا ہے، ہم یہ بات سیکھ چکے۔ کوئی اور ہستی، کوئی اور بشر، کوئی اور روح، کوئی اور آبجیکٹ، کوئی اور شے، کوئی اور چیز اس کائنات میں ایسی موجود نہیں ہے کہ جو خالق ہو، جو خود سے کچھ بنا سکے۔ ہم مسیحیوں کو اور تمام دنیا کو یہ بات جان لینی اور سمجھ لینی چاہیے کہ صرف اور صرف قادر مطلق خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور زندگی دینے، اسے قائم رکھنے اور اس کی حدیں مقرر کرنے، اور پھر اس کے خاتمے اور اس خاتمے کے بعد اگر وہ نئے سرے سے پھر زندہ کرنا چاہے تو اس پر اختیار صرف اور صرف یہوہ قادر مطلق خدا ثالوث کو ہے۔ کوئی اور ہستی نہیں کہ جو زندگی اور موت پر اختیار رکھ سکے۔ صرف خدا ہے جو زندگی پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ خود زندگی ہے اور وہ اپنی زندگی میں سے انسانوں کو دیتا ہے۔ اس نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ آدم مٹی کا پتلا تھا، خدا نے اپنی سانس اس میں ڈالی، دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہو گیا۔ خدا ہی ہے جو زندگی قائم رکھتا ہے، خدا ہی ہے جو زندگی کی حدیں مقرر کرتا ہے۔ زبور نمبر 139 میں لکھا ہوا ہے کہ تو نے میرے دن اپنی کتابوں میں لکھ رکھے ہیں۔ You have ordained my days۔ خدا نے مقرر کر رکھا ہے ہر ایک انسان کی زندگی کا پیمانہ کہ وہ کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے اور کتنے برس جیے گا۔ اگر کوئی ہمیں چکمہ دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے کہ جی زندگی کوئی اور بھی دے سکتے ہیں، بچے کہیں اور سے بھی مل جاتے ہیں، کسی اور سے بھی مانگنے سے اولادیں مل جاتی ہیں، تو یہ غلط ہے۔ صرف خدا زندگی پیدا کرتا ہے، اور صرف خدا ہے جو زندگی کی حفاظت کرتا ہے، اور صرف خدا ہے جو زندگی کی حد مقرر کرتا ہے۔ موت پر بھی اسے اختیار ہے۔ خدا کے کلام میں بزرگ موسیٰ کی بابت لکھا ہوا ہے، اور اس نے خدا کے کہے کے موافق وفات پائی۔ خدا بلاتا ہے بنی آدم لوٹ آؤ، پھر لوٹ جاتے ہیں۔ خدا نے ہماری زندگی کی حد مقرر کی ہوئی ہے۔ صرف خدا ہے جو زندگی پیدا کرتا ہے، زندگی سنبھالتا ہے، اور پھر موت پر بھی اسے اختیار ہے۔ صرف وہ ہے جو موت کی اجازت دیتا ہے۔ کوئی ہمیں مار نہیں سکتا جب تک ہمارا خالق ہمارا وقت پورا نہ قرار دے دے۔ جسے وہ زندہ رکھے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ اور جب خدا نے کسی کی موت کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب اس کا وقت پورا ہو گیا ہے اور اس کو اب مر جانا ہے، وفات پانی ہے،
उसकी डेथ हो जानी है, तो कोई उसे जिंदा नहीं रख सकता। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। हिजकियेल के सहीफे में लिखा हुआ है, खुदा ने नबी से कहा, सूखी हड्डियों की वादी में जा, नबूवत कर, कलाम कर। खुदा ने उन हड्डियों को इकट्ठा किया, उन पे गोश्त चढ़ा, उन पे नसें चढ़ी, उन पे चमड़ा चढ़ा, और फिर खुदा ने उनमें दम फूका और उनको जिंदा करके नबी को दिखा दिया कि मैं जिंदगी फिर से पैदा करने की भी ताकत रखता हूं। जो पैदा हुए, जिंदा रहे और मर गए, मैं ये इख्तियार रखता हूं कि मैं उन्हें फिर से जिंदा कर दूं। हमारा खुदा हमें वादा देता है कि मैं तुम्हें फिर जिंदा करूंगा। और जिसने हमारे साथ ये वादा किया है, वो मौत और कब्र को शिकस्त देकर जी उठा है। उसने कहा, मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। उसके पास अथॉरिटी है, मौत और आलम अरवाह की इख्तियार उसके पास है। इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं। कोई बीमारी है, कोई वबा है, कोई मुसीबत है, कोई रोग है, कोई दुश्मन है, अपना है पराया है, कोई डरने की जरूरत नहीं। जिसे खुदा जिंदगी देता है, कोई उसकी जिंदगी छीन नहीं सकता। और यह भी जहन में रखें कि जब खुदा इरादा कर लेता है कि अब इसका वक्त पूरा हो गया है, तो कोई उससे बचा नहीं सकता। हम ऐसे खुदा पर ईमान रखते हैं जो जिंदगी और मौत पर इख्तियार रखता है और मौत के बाद फिर जिंदा करने की भी कुदरत रखता है। और फिर बाइबल ये बताती है कि खुदा रहम करने वाला है, तरस खाने वाला है। He is merciful and compassionate. वो गुस्से में जरूर आता है गुनाहों की वजह से। जो इंसान गुनाह करते, बदियां करते हैं, because of the sins of men, God gets angry. गुस्सा आता है, फिर उसका गजब भड़कता है। वो भस्म करने वाली आग उन्हें मारता है, उन्हें भस्म करता है, उन्हें सजा भी देता है, बिकॉज ही इज जस्ट जज। वो रास्त, सच्चाई से अदालत करने वाला मुंसिफ है, आदिल है वो। और वो गुनाहगार को सजा देता है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। डेथ पेनल्टी है गुनाहगारों के लिए, उसको सजा देता है जो गुनाह करते हैं। लेकिन खुदा रहम करता है, इज मर्सीफुल। वो तरस खाता है, इज कंपैशनेट। उसने खुद अपने बारे में खरूज की किताब में मूसा पर जाहिर हुआ और खुदावन का नाम लेता हुआ वो आगे से गुजरा। खुदावन खुदावन खुदा रहीम है, हजारों पर फजल करने वाला है, रहम करने वाला, तरस खाने वाला है। ज़बूर 103 में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं करता, बल्कि हम पर ऐसे तरस खाता है कि जैसे बाप बेटों पर तरस खाता है। खुदा मखलूकात पर रहम करता है, खुदा मखलूकात पर तरस खाता है। और उसके रहम और तरस की एक बड़ी निशानी यह है कि आज भी वो हमारे गुनाहों, हमारी बदियों और हमारी नाराजगियों की वजह से गुस्से में आकर सब कुछ एकदम खत्म नहीं कर देता। वो सबकी हलाकत नहीं चाहता, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। वो रहम करता है, वो तहम्मुल करता है, वो इंतजार करता है, वो बर्दाश्त करता है कि बनी आदम लौट आओ, ऐ बरगश्ता बच्चों लौट आओ। वो रहम करता, वो तरस खाता है, और उसका रहम और तरस हम पर है। हम जो सही सलामत हैं आज, हम जो इस दुनिया में फैली हुई वबा और मुसीबत और बीमारी से बचे हुए हैं, हमारा घराना अगर बचा हुआ है तो ये खुदावंद का रहम है, उसका तरस है हम पर कि उसने हमें बचा रखा है। खुदा शुक्रगुजारी के लायक है। वो रहम करने वाला है, वो तरस खाने वाला है। लोग डरते हैं खुदा से, लोग खुदा के करीब नहीं जाना चाहते, कहते हैं वो बहुत गुस्से वाला है, वो बहुत गजबनाक है, वो हलाक करने वाला है, वो मार डालने वाला है, वो बहुत सजा देने वाला है, वो इतना पाक, इतना मोतबर और इतना दूर है हमसे, वो इतना बड़ा है, हम उसके करीब नहीं जा सकते, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसके करीब जाके उससे कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो गजब वाला,
हशमत वाला, रोब वाला, गुस्से वाला खुदा है, सजाएं देने वाला खुदा है, गलती को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये हमारे जहनों में खुदा के बारे में ख्यालात और तस्वुरात मौजूद हैं जो एक हद तक सच हैं। खुदा बदी को देख नहीं सकता, खुदा गुनाह से नफरत करता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी जात में ये सिफ्त, ये खूबी, ये क्वालिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। ही इज मर्सीफुल एंड ही इज कंपैशनेट। वो जो उसके सामने आजिज होके, हम्बल होके झुक जाते हैं और उसके पास आ जाते हैं कि ए खुदावंद, मुझ गुनाहगार पर रहम कर, मुझ पर तरस खा, तो वो उन पर रहम करता है, उन पर तरस खाता है। उसे लोगों को देखकर उन पर तरस आता है। जैसे यीशु, हजारों की भीड़ थी, अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स पीपल, खुदावंद यीशु उनको देखता है और कहता है मुझे इस भीड़ पर, इस क्राउड पर तरस आता है। खुदावंद गुस्से वाला है, वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता। खुदा आदिल और मुंसिफ है। ही इज राइचियस जज एंड ही पनिशेस बट ही गिव्स रिवॉर्ड्स एज वेल। वो सजा जरूर देता है, लेकिन उसके साथ अज्र, तोहफे, गिफ्ट्स, नेमतें, ब्लेसिंग्स भी देता है। वो रहम करता है। एक बार उसके करीब होके तो देखो, उसको रहीम करके पुकारिए, ऐ मेरे रहीम खुदा, तू जो रहम करने वाला है, तू जो मेहरबान है, तू जो मेहरबान है, तू जो तरस खाने वाला है, तू जो बनिनो इंसान के गुनाहों को मुआफ करने वाला है, तू मुझ पर तरस खा, मुझ पर रहम कर। खुदावंद यीशु ने खुद ये तमसील बताई कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और एक महसूल लेने वाला। और महसूल लेने वाले ने इतना भी न चाहा कि अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा कि मुझ गुनाहगार पर रहम कर, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और यीशु ने कहा कि वो मकबूल ठहर के वहां से रुखसत हुआ, उस पर रहम किया गया। ऐसे लोग के जो अपने हालात में खुदा का रहम, खुदा का तरस, उसका कंपैशन और उसकी मर्सी मांगते हैं, खुदा उन्हें बख्शता है। आओ हम अपने तस्वुरात को दुरुस्त कर लें। खुदा रहीम है, वो मेहरबान है। इबादत के शुरू में हमने ज़बूर 145 की कुछ आयत गाई। निहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, वो धीमा गुस्से विच सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। खुदावंद कहर करने में धीमा है और शफकत और रास्ती में गनी है, फैयाज है, जेनरस है। वो ही इज जेनरस इन शोइंग मर्सी एंड कंपैशन। आओ उसको पुकारो, क्या रहीम खुदा, मेरे हालात पे रहम कर, मुझ पर तरस खा। खुदा से डर के, खौफ खा के दूर ना रहो, उसके करीब आओ। वो बहुत शफकत करने वाला है, वो बहुत रहम करने वाला है, वो बहुत तरस खाने वाला है। वो जानता है कि हम मिट्टी से बने हैं। ज़बूर 103 में लिखा है वो हमारी सरिश से वाकिफ है। वो जानता है कि हम खाक से बने हुए हैं और हमारी कैपेसिटी क्या है। हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं करता, हमें बदला नहीं देता, मुआफ करता है, तरस खाता है जैसे बाप बेटों पर। खुदा के करीब आइए, वो रहम करेगा, वो तरस खाएगा, वो हमेशा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा सजा ना देगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। खुदा ही निजात और हमेशा की जिंदगी देता है। खुदा से दूर जाके कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? कौन है जो खुदा के हाथों से बचा सके? कौन है जो, अगर खुदा से हम नाराज होके, खुदा से गुस्सा करके, खुदा से डर के हम दूर भाग जाते हैं कि हम खुदा के करीब नहीं रहेंगे, तो कौन है जो हमें बचा सकता है? यूना बनेंगे जो नैनवा जाने की बजाय तरसीस को भाग गया था, खुदा से दूर जाने की कोशिश की, तो कहां जाता वो? सारी कायनात खुदा की है, खुदा हर जगह मौजूद है। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड ही इज एबल टू डू एनीथिंग। ही इज ऑल पावरफुल गॉड। वो सब कुछ कर सकता है। उससे छुप के भाग के कहां जाएंगे?
कोई नहीं बचा सकता सिवा खुदा के। यूना को भी तूफान में फेंक दिया गया, उसने कहा फेंक दो, तुम लोग बच जाओगे, मुझे फेंक दो ताकि मैं इन लहरों के सुपुर्द हो जाऊं, मैं समुंदर में फेंक दिया जाऊं। लेकिन खुदा ही उसको बचाने वाला था, खुदा ही उसको सेव करने वाला था, खुदा ने ही उसे सेकंड चांस दिया। खुदा की तरफ लौटिए, वो निजात देता है। He saves, He gives salvation and eternal life। हम अगर गुनाह में पड़े हैं, हम अगर अपनी नाराजगी और गंदगियों में पड़े हुए हैं और हम समझते हैं मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं खुदा के करीब नहीं जा सकता, मैं बहुत गंदा हूं, मैं खुदा के हजूर जा नहीं सकता, मैं बहुत बुरा हूं कि मैं खुदा के पास नहीं जा सकता, तो आज वक्त है, यही वक्त है, खुदा के पास आ जाइए। वही निजात दे सकता है, वही हमें गुनाहों से बचा सकता है, वही हमारी मुसीबतों से हमें छुड़ा सकता है, वही हमारी मुखालिफ कुव्वतों से हमें महफूज रख सकता है। खुदा की रूह से बच के हम कहां जाएं? उसके रहम और तरस को पुकार लीजिए, वो निजात देने के लिए तैयार है। वही निजात देता है, वही हमेशा की जिंदगी देता है। इंसानों ने अपने गुनाहों की वजह से मौत, डेथ अर्न की है, मजदूरी के तौर पर ली है, उजरत के तौर पर ली है, हमने कमाई है, मौत हमने खुद मोल ली है अपने लिए, अपने गुनाहों की वजह से। खुदा चाहता है हम जिंदगी पाएं, हम खुदा की तरफ जाएं, वो हमें निजात दे दे और हमें हमेशा की जिंदगी दे दे। कोई नहीं है कि जो अमर हो सके। बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश तारीख में रही कि हम अमर हो जाएं। मुख्तलिफ स्टोरीज, फिक्शन, कहानियां, फिल्म्स, ड्रामाज आप देखते हैं जिसमें ये मिलता है कि कोई शख्स अमर होना चाहता है ताकि मैं हमेशा तक जी सकूं, और वो उसके लिए कोई फार्मूला पाने की बड़ी तगोदौर कोशिश करता है और बड़े सारे मंसूबे बनाता और बड़े सारी मुहिम जोई करता है कि मैं कोई पानी हासिल कर लूं, कोई जौहर हासिल कर लूं कि जिसको पीने के साथ मैं अमर हो जाऊं, हमेशा जीऊं। कोई नहीं है, सिर्फ खुदा हमेशा तक जीता है, क्योंकि वो अब्दुल आबाद जिंदा खुदा है। उसके बर्स ला इंतहा है। हर एक चीज के जिसका आगाज होता है उसका अंजाम भी होता है। ना खुदा का कोई आगाज है, ना खुदा का कोई अंजाम है। एवरीथिंग दैट हैज बिगिनिंग हैज एन एंड, बट God has no beginning and God has no end. God is from ever and He will remain forever. खुदा हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा, और वो जिसे जिंदगी दे हमेशा की वो पालेंगे। हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि उसने कहा है कि तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यह जिंदगी खुदा के बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। खुदा ने निजात का इंतजाम किया है, वो निजात देता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, हमें अपने आप को मारने और पीटने की जरूरत नहीं, हमें अपने आप को सजाएं देने की जरूरत नहीं, हमें कोई बहुत मुशक्कतें और डिफिकल्ट काम करने की जरूरत नहीं है। खुदा ने कर दिया हमारे लिए आसान। जो कोई खुदावंद पर ईमान लाएगा, जो कोई उसका नाम पुकारेगा, वो निजात पाएगा, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। वो नाम यीशु नाम है। खुदा सब कुछ बनाता है, सब कुछ संभालता है, और गुस्से भी होता है जब लोग गलत काम करते हैं तो वो सजा भी देता है, लेकिन रहीम भी है, तरस भी खाता है, निजात भी वही देता है। उसी ने निजात का इंतजाम किया है। हम तो अपनी निजात नहीं कमा सकते थे। हम मौत हमने कमा ली, सजाएं और मुसीबतें हमने कमा ली अपने लिए, लेकिन हम निजात नहीं कमा सकते। हमारा कोई अमल, कोई फेल इस काबिल नहीं, कोई काम इस काबिल नहीं कि हम निजात कमा सकें। खुदा ने यह काम किया, अपने बेटे को भेजा जिसने दुख सहे, जान दे दी और अब जिंदा है। उसी में निजात पोशीदा है। खुदा निजात देता और हमेशा की जिंदगी देता है। किसी भी मुसीबत में फंसे हो, कितने ही शिकंजे में क्यों नहीं हो, कितने ही बड़ा प्रिजन नहीं है, कितने ही स्ट्रॉन्ग चेन्स क्यों नहीं है,
खुदा हर एक मजबूत जंजीर और जकड़ और बंधन और जुए को तोड़ने की ताकत रखता है और हमें बचा लेता और छुड़ाता है, बिकॉज ही सेव्स, वो निजात देता है और हमेशा की जिंदगी देता है। खुदा अजली तौर पर सालूस खुदा है। ही इज ट्रायून गॉड एटर्नली। मतलब यह है कि वो हमेशा हमेशा से ही बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की अकानीम शख्सियात का हामिल है। खुदा एक है, लेकिन उसमें बाप और बेटा और रूहुल कुद्स हैं, ये एक है। बाइबल ये बताती है कि जब खुदा ने तख्लीक किया तो वहां भी उसने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं, अपनी जात में कसरत का उसने एक हिंट दिया, लेट्स मेक मैन इन आवर इमेज, हम अपनी सूरत पर बनाएं। और बनी इस्राइल का भी अकीदा था, उनसे बड़ा कौन तौहीद परस्त होगा, लेकिन वो ये जानते हैं कि यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ। खुदावंद यीशु मसीह ने इस ईमान को और ज्यादा क्लियर करके बता दिया कि कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और मुकाशवा में भी इस पाक तस्लीस, इस होली ट्रिनिटी का जिक्र, बयान, उसकी तस्वीर हमें दिखती है कि खुदा और उसका बर्रा तख्त पर है और सब उसके सामने झुकते हैं और ये पुकारते हैं कि खुदा और उसका बर्रा तमजीद, सिताइश, हम, बादशाही, कुदरत और शुक्र के लायक है। खुदा सालूस है, पाक तस्लीस में है, खुदा की जात में बाप भी है, बेटा भी है और रूहुल कुद्स भी है, अजल से है और हमेशा रहेगा। He is triune, there is holy trinity in one God। ये हमारा मसीही बाइबली ईमान है। मुश्किल लगता है समझना, क्योंकि हम इंसान हैं, हम खुदा को कुली तौर पर समझ नहीं सकते। खुदा को समझना चाहते हैं, खुदा को जानना चाहते हैं, तो कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें। क्या करना होगा? हम खुदा को कैसे जान और पहचान सकते हैं? ख्वाहिश होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम उसको जानें। बाइबल कहती है कि उसकी पहचान, उसको जानने की ख्वाहिश रखो। खुदा ने खुद कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जानो। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरक यीशु को जिसे तूने भेजा है उसे जाने। खुदा को जानने के साथ हमेशा की जिंदगी जुड़ी है। और हम मसीहियों पे ये बड़ा एतराज होता है कि हम तीन खुदाओं को मानते हैं। हम एक खुदा को मानते हैं जिसकी जात में बाप भी है, बेटा भी है, रूहुल कुद्स भी है। और अगर उसको समझना चाहते हो, अगर उसको और जानना चाहते हो, तो फिर एक काम करना पड़ेगा, खुदा के कलाम पर ध्यान करना पड़ेगा। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है। खुदा नबियों और रसूलों की मार्फत बोलता रहा। शुरू में खुदा ने नबियों की मार्फत हिस्सा बा हिस्सा और तरह ब तरह कलाम किया। वो कलाम लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है। ये तब्दील नहीं हुआ, इसमें गलतियां नहीं हैं। ये सच्चा कलाम है, ये जिंदा कलाम है, क्योंकि जिसका कलाम है वो जिंदा है, तो इसलिए ये कलाम भी जिंदा है। इस पर ध्यान करो। इस पर तवज्जो करने से हमें पता चलता है कि खुदा कैसा है, खुदा कौन है, उसकी जात कैसी है और उसकी जात में कितनी डाइवर्सिटी है। खुदा की जात में कितना तनव्वो है। खुदा कैसा है, उसकी खूबियां कैसी हैं,
उसके किरदार कैसा है, उसका करैक्टर कैसा है, ये बाइबल बताती है हमें। इसमें से हम सीखें, इसमें से पढ़ें, इसमें से सुने, इस पर गौर करें, और कलाम में लिखा हुआ है कि इस पर ध्यान करो। बिलखसूस यशवा को यह कहा गया कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो। वो जो लफ्ज वहां इस्तेमाल हुआ इब्रानी में, उसका मतलब है कि जैसे जानवर चारा मुंह में रखते हैं और फिर उसकी जुगाली करते हैं। दे च्यू इट फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, दे च्यू इट। एक बार लेके जाते हैं अपने जिस्म के अंदर और फिर उसमें से कुछ हिस्से बाहर ला लाकर अपने मुंह में उसको च्यू करते हैं, जुगाली करते हैं। खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम पर इस तरह से ध्यान करें कि सिर्फ पढ़ के गुजर ना जाए कि हमने जिम्मेदारी पूरी कर ली, बल्कि हम उसके एक एक हिस्से पर गौर करें, और जब तक उसमें से एसेंस, उसमें से बरकत, उसमें से इल्म, उसमें से फहम, उसमें से अंडरस्टैंडिंग और विजडम हम पा ना लें, हम आगे न गुजरें। इसको पढ़ें, इसे सुने और इसे समझने की कोशिश करें, इस पर ध्यान करें, मेडिटेट करें खुदा के कलाम पर। तब पता चलेगा कि खुदा कैसा है, खुदा की जात कैसी है, और वो सालूस है, ही इज ट्रायून गॉड। उस खुदा की समझ तब आएगी कि जब उसके कलाम को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने भी इसी में से पढ़ के जाना कि वो बाप और बेटा और रूहुल कुद्स है। हमने इसमें से पढ़ के जाना कि वो खालिक है। हमने इसमें से पढ़ के जाना कि वो पालता, संभालता, बचाता, छुड़ाता, अदल करता, सजा देता, अजर देता और हमेशा की जिंदगी भी देता है। इसी में से हमने अपना ईमान अख्ज़ किया है, इसी में हमारे ईमान की जड़ें और बुनियादें हैं। इसलिए खुदा को जानना है तो खुदा के कलाम पर ध्यान लगाना पड़ेगा, खुदा के कलाम को पढ़ना है, खुदा के कलाम को सुनना है और उसे समझना है। अब आम लोगों के लिए इसको समझना मुश्किल हो जाता है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमें इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, इसके भेद हम खुद से नहीं समझ सकते, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सपोजिशन, इसकी तशरीह और तफसीर हम कैसे कर सकते हैं। खुदा ने इसके लिए अपने खादिम मुकर्रर किए हुए हैं। आपका ताल्लुक किसी भी कलीसिया से है, आप अपनी कलीसिया के चरवाहे और उस्ताद से राबते में रहिए और उससे सीखिए। खुदा ने हर एक कलीसिया में अपने खादिम मुकर्रर किए हैं जो कलाम की खिदमत करने के लिए हैं। उनकी बुनियादी जिम्मेदारी ही यह है कि वो खुदा के लोगों को उसके कलाम की तालीम दें। इसलिए आप खुदा के खादिमों से, अपने पासवान से, अपने चर्च पास्टर से, अपने पैरिश प्रीस्ट से राबते में रहें। उसे मालूम है आपकी सोच का, उसे मालूम है आपके हालात का, वो आपको सही समझा सकते हैं, सही रहनुमाई कर सकते हैं। खुदा के कलाम को पढ़िए, पढ़ नहीं सकते इसे सुने और फिर उस पर गौर करें, उसे समझें। खुदा आपको वाज़े कर देगा कि मैं कैसा हूं, मेरी जात कैसी है, मेरी खूबियां कैसी हैं और वो क्या आपसे चाहता है। अगर हम खुदा को गहरे तौर पर और जानना चाहते हैं तो फिर खुदावंद यीशु मसीह का वसीला है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसे जाहिर किया। खुदावंद यीशु मसीह ने बता दिया कि तुमने मुझे देख लिया है, अब मुझे जान गए हो तो बाप को जान गए हो, क्योंकि बाप और मैं एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। खुदा की जात का नक्श और उसके जलाल का परताव है। He is the true image of God। फिर वाजे कर दूं, पहले भी ये बता चुका हूं कि खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर एक इंसानी बदन में आया। खुदा रूह है, उसका बदन नहीं है, लेकिन यीशु मसीह बदन में जाहिर हुआ,
بدن خدا کے جیسا نہیں، لیکن اس بدن کے اندر جو جلال اور جو قدرت اور جو خوبیاں، جو کردار، جو مائنڈ، جو کریکٹر ہے، وہ خدا کا ہے۔ یسوع کا کریکٹر، یسوع کا مائنڈ، یسوع کی وزڈم، اس کا بیہیویئر، اس کا کنڈکٹ، اس کی اتھارٹی، اس کی گلوری، اس کی میجسٹی، وہ سب الوہیت والی ہے، الہی ہے، دیٹس ڈیوائن۔ خداوند یسوع مسیح بدن میں کامل خدا ہے۔ اگر خدا کو سمجھنا ہے تو یسوع مسیح اویلیبل ہے، اس سے مل لیجیے، اس سے مل لیجیے۔ خداوند یسوع مسیح ہو بہو باپ کے جیسا ہے۔ یسوع مسیح میں اور باپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے خود کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر یسوع مسیح میں سکونت کرتی ہے۔ خدا جسم میں ظاہر ہوا۔ اب خدا کو اگر آپ نے ملنا ہے تو یسوع سے ملنا پڑے گا۔ خدا کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو یسوع کو پہلے پہچاننا پڑے گا۔ خدا سے آپ نے تعلق قائم کرنا ہے تو آپ کو یسوع سے رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے، وہ اپنے لوگوں کی پکار پہ آ جاتا ہے۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اور وہ اکیلا دمشق کی راہ پہ بھی مل لیتا ہے اور ساؤل کو پولوس بنا دیتا ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کو صرف پکاریں گے کہ میں خدا کو جاننا چاہتا ہوں، اے یسوع تو مجھ پر ظاہر ہو، تو مجھے بتا کہ خدا کیسا ہے، تو مجھے بتا کہ خدا کے ساتھ میں رشتہ کیسے قائم کروں، وہ خود آپ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے رابطہ کر لے گا۔ But he needs an invitation۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو بلایا جائے۔ وہ تو دروازوں پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے، اور آج خدا آپ کے دلوں پر کھٹکھٹا رہا ہے۔ خدا پاک روح آپ تک یہ آواز پہنچا رہا ہے کہ یسوع آپ کے دروازوں پہ کھڑا ہے۔ وہ دور نہیں ہے، وہ کھٹکھٹاتا ہے کہ جو اس کی آواز سن کر دروازہ کھولتا ہے وہ اس کے ساتھ اندر جاتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور وہ کمیونین رکھتے ہیں، فیلوشپ رکھتے ہیں۔ خدا کو جاننا ہے تو یسوع کو جانیے، خدا سے ملنا ہے تو یسوع سے ملیے، خدا سے تعلق قائم کرنا ہے تو یسوع سے تعلق قائم کیجیے، کیونکہ یسوع بدن میں کامل خدا ہے۔ دنیا مانے نہ مانے، یسوع کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہر ایک گھٹنا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اسی کے سامنے جھکے گا، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، سب کو یقین آ جائے گا کہ یسوع ہی خداوند ہے، کیونکہ بدن میں وہ ظاہر ہوا۔ اس نے دکھایا کہ خدا کیسا ہے، اس نے دکھایا کہ خدا مہربان ہے، رحیم ہے، نجات دینے والا ہے، دکھ سہنے والا ہے، ترس کھانے والا ہے، بچانے اور چھڑانے والا ہے، قدرت والا ہے، زور والا ہے، اور وہ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، وہ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے کلام پر توجہ کریں۔ یہ کلام آپ کو خدا کی طرف رہنمائی دے گا، یہ بتائے گا خدا کیسا ہے، اس سے کیسے آپ نے ملاقات کرنی ہے، کیسے تعلق قائم کرنا ہے، اور پھر یسوع کو دعوت دیجئے، وہ تو خود آپ کی زندگی بدل دے گا۔ جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں نجات آ جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، زندگیاں اور سوچیں بدل جاتی ہیں، اور پھر خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے سے جن کو یہ باپ اور بیٹا روح القدس سمجھ نہیں نہ آتے، وہ کبھی اس کی رفاقت میں بیٹھیں تو صحیح۔ کسی کو سمجھنا ہو تو اس کے ساتھ ملاقات کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں سن کے ہمیں زیادہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ پرسنالٹی، وہ کریکٹر،
वो शख्सियत, वो किरदार कैसा है, वो हस्ती कैसी है, खाली सुनने के साथ नहीं पता चलता जब तक कि आप एक्सपीरियंस ना करें। कादर मुतलक खुदा के साथ रफाकत रखें। मैं दावत देता हूं आपको, आप जहां भी हैं आप उसको बुलाइए, ऐ कादिर खुदा, तू जो सालूस खुदा है, तू जो ट्रायून गॉड है, तू बाप और बेटा और रूहुल कुद्स है, तू मेरी जिंदगी को अपनी मौजूदगी से भर और अपने इरफान से, अपने नॉलेज से, अपने इल्म से भर दे, ताकि मैं तजुर्बा करके विद द एक्सपीरियंस मैं ये जान सकूं और ये मान सकूं कि तू ही खुदा है। खुदा के साथ रफाकत रखिए। ये रफाकत सिर्फ एक बार दावत देने से नहीं होती, इट इज कंटिन्यूस वर्क, कंटिन्यूस एक्शन है ये, जिसके साथ हमारी दोस्ती होती है ना, हम 24 घंटे उनके साथ रहना पसंद करते हैं। जो हमें प्यारे होते हैं हम उनसे अलग होने का सोचते नहीं। अगर मजबूरी में अलग हों भी तो फिर हमारा फोन पे राब्ता रहता है, और अगर किसी वजह से सिग्नल ड्रॉप हो जाए, पावर कट हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए कि इस कम्युनिकेशन में, तो फिर हमारा जहन और हमारा दिल उनसे जुड़ा रहता है। दिस इज द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस रिलेशनशिप, 24/7, 24 घंटे और पूरा हफ्ता और तमाम जिंदगी हम खुदा के साथ रफाकत में रहने का इरादा तो करें। खुदा भी समझ में आएगा, उसकी कुदरत भी समझ में आएगी, उसकी सारी खूबियां भी समझ में आएंगी, और यह भी पता चलेगा कि वो है। कई लोग तो मानते ही नहीं कि वो है भी। कभी उसकी रफाकत रखने की कोशिश तो करो, जानो तो सही, उसको दावत तो दो कि वो आए। वो जरूर आप पर अपना आप दिखाएगा, वो जरूर आपसे मुलाकात करेगा और आपको एहसास दिलाएगा कि वो है और वो कैसा है। सो खुदा को जानने के लिए 3 काम करने हैं। खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस पढ़नी है, सुननी है, समझनी है। दूसरा, खुदावंद यस्सु के साथ रिश्ता कायम करना है। और तीसरा, रफाकत मुसलसल होनी चाहिए। ये एक दिन का काम नहीं है, ये मुसलसल रफाकत है। दुआ में झुकें। दुआ है ना, ये एक मुलाकात है, इट्स मीटिंग, इट्स कन्वर्सेशन। खुदा और इंसान आपस में बात करते हैं, सिर्फ कहना ही नहीं, दुआ में खुदा की भी सुननी है। आप रफाकत रखें, कलाम पढ़ें, दुआ करें, खुदा के साथ वक्त गुजारें और उसे मौका दें कि वो आपसे बात करे, वो अपना आप पर जाहिर करे। सो अजीज कलीसिया और सब सुनने वाले, अगर आप चाहते हैं कि खुदा को जाने, खुदा ऐसा है कि वो चंद हफ्तों में, कुछ घड़ियों में ना सीखा जा सकता है, ना सिखाया जा सकता है, ना उसको थोड़े वक्त में जाना जा सकता है, और ना कोई ये कोशिश करके भी आपको ये कर नहीं सकता कि जी अब आप जान गए हो। मैंने थोड़ी सी कोशिश की चंद हफ्ते कि खुदा के बारे में आपको कुछ बातें बता सकूं। खुदा की जात इतनी लामहदूद है, उसकी खूबियां और सिफतें इतनी ज्यादा हैं कि अगर उन्हीं पे बात करते रहे तो जिंदगी बीत जाएगी। सो मैं ये सिलसिला खुदा के बारे में जानने का कलीसियाई तौर पर और पुलपट से इसकी मुनादी के हवाले से अभी फिल वक्त इसको रोक रहा हूं। दिस विल बी द लास्ट एपिसोड, ये आखिरी किस्त होगी, सिलसिला होगा। खुदा को जानने के हवाले से इस सीरीज का ये आखिरी पैगाम है, ये आखिरी हिस्सा है तालीम का, लेकिन ये आपके लिए शुरुआत होनी चाहिए। आज से आप ये 3 तरीके अपनाएं, बाइबल पढ़ना, सुनना और समझना शुरू करें, और इसमें से खुदा को जानें और खुदावंद यस्सु से कहें कि तू मेरे साथ हो जा, मेरे अंदर आ जा और मुझ पर जाहिर कर कि तू कैसा है, बाप और रूहुल कुद्स कैसे हैं, ताकि मैं ज्यादा बेहतर तौर से प्रस्तिश कर सकूं और मेरा ईमान और मजबूत हो। खुदावंद यस्सु से ताल्लुक कायम है तो उसे मजबूत करते जाएं, अगर नहीं है तो आज ही खुदावंद यस्सु से ताल्लुक कायम कीजिए और फिर रफाकत मुसलसल रखिए खुदा के साथ। खुदा को छोड़ नहीं देना, खुदा के साथ चलते रहना है, दुआ में, कलाम में, उसकी हम्द में, और उसके लोगों के साथ रफाकत रखें। खुदा के लोग आपको
اپنے تجربات سے یہ بتائیں گے کہ انہوں نے خدا کو کیسا پایا ہے، خدا کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس کیسا ہے۔ تو آج سے آپ کی کھوج شروع، آج سے آپ شروع کیجئے کہ میں نے ذاتی طور پر اور ہم نے ایک خاندان کے طور پر، ایک گروپ کے طور پر ہم نے یہ کام شروع کرنا ہے کہ خداوند ہم تیرے ساتھ تعلق میں، رشتے میں گہرے ہونا چاہتے ہیں، اور ہم تجھے ایسا جاننا چاہتے ہیں کہ پھر ہم جدا نہ ہونے پائیں۔ یاد رکھیں، خدا کو جاننا صرف عقل کے لیے نہیں، دل کے لیے اور زندگی کے لیے ہے، روح کے لیے ہے، من کے لیے ہے، انر کے لیے ہے، کہ خداوند میں صرف ایز اے نالج، ایز اے ہیڈ نالج، صرف عقلی علم نہیں لینا چاہتا میں، بلکہ میں ایمان میں مضبوط ہونا چاہتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ رشتے میں مضبوط ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں تجھے جاننا چاہتا ہوں۔ اور خدا کو جانتے ہوئے کچھ باتیں صرف یاد رکھنے کی ہیں، پیچھے آپ سیکھ چکے، لیکن پھر دہراؤں گا، ہمارے خدا کا کردار یہ طے کرتا ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ The character of our God determines our character۔ اگر ہم اپنے خدا کو جانتے ہیں تو پھر ہمیں پتا ہوگا کہ وہ ہم سے یہ مطالبہ کیوں کرتا ہے، کیونکہ خدا حکم دیتا ہے کہ تو ایسا نہ کرنا، تو یہ نہ کرنا، تو یہ والا کام نہ کرنا، اور تو یہ کرنا۔ خدا ہمیں جب ڈوز اینڈ ڈونٹس دیتا ہے، خدا جب ہمیں کوئی کام کرنے سے منع کرتا ہے یا کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ آسان ہوگا اگر ہم خدا کو جانتے ہیں کہ خدا خود یہ کام کرتا ہے، یہ خدا کی اپنی خوبیاں ہیں، اس لیے وہ مجھے کہہ رہا ہے۔ سو ہمارے خدا کا کردار جب ہمیں پتا ہوگا کہ وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، تو پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی خدا کے حکموں پر، پھر ہمیں اچھے لگیں گے خدا کے حکم، کیونکہ ہمارے خدا کا کردار یہ طے کرتا ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور ہمارا کردار یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے خدا کا کردار کیسا ہے۔ جب ہم اپنا کردار خدا کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں گے تو پھر لوگ جانیں گے کہ ان کا خدا کیسا ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، یعنی تمہارا کردار سب آدمیوں پر ظاہر ہونا چاہیے، چھپ کے گھروں میں، کمروں میں تمہارا مسیحی کردار نہیں رہنا چاہیے، تمہاری زندگی اوپن ہونی چاہیے، پبلک میں تمہارا کریکٹر ظاہر ہونا چاہیے، کردار تمہارا عام ہونا چاہیے، سب کو پتا ہو کہ یہ شخص کیسا ہے، تاکہ تمہارے نیک کاموں سے، تمہارے بھلے کاموں سے، by your good deeds، لوگ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں، that people shall know that who is our God، ہمارا خدا کیسا ہے۔ سو خدا کو جب ہم جانتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جیسا اس کا کردار ہے ویسا ہی میرا ہونا چاہیے، اور پھر ہمارا کردار، ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ میرے کردار سے لوگوں کو یہ دکھے گا کہ میرا خدا کیسا ہے۔ اگر میں کسی سے جھگڑا کرتا ہوں تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اس کا خدا جھگڑا کرنے والا ہے، اگر میں محبت کرتا ہوں تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس کا خدا محبت کرنے والا ہے، اگر میں رحم کرتا، مدد کرتا، ترس کھاتا، فکر کرتا ہوں، لوگوں کے خیال کرتا ہوں، انسانوں کا احترام کرتا ہوں، دوسروں کی آزادی اور ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں، تو پھر لوگ جانیں گے کہ اس کا خدا بھی دوسروں کی آزادی اور حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے ذمہ داری ہم پہ آ جاتی ہے، خدا کو جاننا اس لیے ضروری ہے۔ میری درخواست ہے کہ خدا کو جاننا چھوڑیے نہیں، آگے بڑھیے اور کوشش کرتے رہیے، خدا کو جانتے رہیے اس کے کلام کے ذریعے، یسوع مسیح کے ساتھ تعلق قائم کر کے، اور پھر خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے ساتھ مسلسل رفاقت میں رہ کر ہمیں اپنے کردار سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ خدا کیسا ہے۔ اور جو اینڈ پوائنٹس جو میری سمجھ میں آتا ہے، آؤ ہم سب
खुदा से ऐसे लिपट जाएं कि उसका नाम हमारे नाम से जुड़ जाए। खुदा चाहता है, उसने कौम इस्राएल से भी कहा था कि तुम मुझसे लिपटे रहना। लिपटने का मतलब पता है ना आपको, टू स्टिक विद, कि जैसे छोटे बच्चे हैं वो अपने बड़ों की टांगों से लिपट जाते हैं। छोटा बच्चा है, जब वो अपनी माँ को या बाप को मिलता है तो वो उसको हक करता है, उसको गले लगा लेते हैं और फिर अपने बाजुओं में ले लेते हैं। हम खुदा से लिपट जाएं, खुदा से ऐसे चिमट जाएं, वी शैल स्टिक विद गॉड। हम ग्लू की तरह चिपक जाएं, खुदा के साथ लिपट जाएं और जुदा ना हो। हम इस तरह से खुदा के साथ लिपट जाएं, वी शैल स्टिक विद गॉड so fast that his name shall stick with our name। हम और खुदा जुदा ना होने पाए। खुदा, जो लोग उसके साथ चिपक जाते हैं, जो उससे चिमट जाते हैं, जो उससे लिपट जाते हैं, जो उससे जुदा नहीं होते, खुदा अपने नाम के साथ उनका नाम जोड़ देता है। बाइबल गवाही देती है कि खुदा को पसंद आया कि वो कहलवाए अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। और दानियेल की किताब में पसंद आया खुदा को कि वो ये लिखवाए कि बादशाह गैर कौम जाने कि किस खुदा ने बचाया। वो खुदा जो सदरक, मिसक और अबदनजू का खुदा है, वो मुबारक है जिसने आग की भट्टी में से इनको बचा लिया। और फिर दानियेल का खुदा मुबारक हो, वही है जो कादिर खुदा है, जमीन के सब कौमें और कबीले उसी का डर माने। आओ हम खुदा को ऐसे जान लें, उसको ऐसे पहचान लें, उसके साथ जुड़ जाएं। हमारा नाम और खुदा का नाम इनसेपरेबल हो जाए, जुदा ना होने पाए, उसका नाम हमारे नाम के साथ जुड़ जाए।